Hello my dear BRGNs, how are you all? After the holidays, this is your next lesson of science. Before holidays, we have done our 4 chapters, isn't? So this is our next chapter, that is changes around us. Okay, so today we will discuss about the changes. So in this chapter, we will cover the topics: what is change, what are the types of changes, that is natural change, man-made change, reversible change, irreversible change, physical change as well as chemical change. And next we will discuss about what are the causes of these physical and chemical changes, किन कारणों से हमारे ये फिजिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंज होते हैं. आफ्टर दैट what are the effects of heating and cooling on these substances, and after this we will discuss the application of contractions and expansion. So students, what is change? In day-to-day life we observe many changes. For example, we are growing day by day, our nails also become grow. Okay, milk changes into curd, this is also a change. Okay, so what is change? A change refers to a noticeable difference in the properties of the substance. उसकी substances की properties में क्या होना, difference आना, that is known as the change. और कौन कौन सी properties में change आ सकता है? For example, shape में. For example, मेरे पास pencil है. Okay, if I sharp the pencil, तो पेंसिल को जो मैं शार्प करूंगी तो उसके बाद क्या होएगा, उसकी जो शेप होएगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना. सो दिस इज अ चेंज. नेक्स्ट साइज विल आल्सो चेंज. कलर, स्टेट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, बट अगर आप उसको फ्रीज में रखोगे एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम आइस, तो शेप में क्या हुआ, कुछ डिफरेंस आया ना. So this is known as the change. It is referred to a noticeable difference in the properties of the substance, and that properties may be shape, size, color, state, or any internal structure. Next is what are the types of changes. So students, first is natural change. As its name indicates, natural means those changes which are not man-made. हम नहीं कर रहे हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. They are occurring naturally, that are known as the natural change. For example, see, human grows, so this is a natural change. Animal also grows, so ये भी क्या एक नेचुरल चेंज है. प्लांट है, पहले एक सीड होएगा, फिर वो एक प्लांट बनेगा, फिर एक वो ट्री बन जाएगा, तो ये क्या है, ये भी क्या एक नेचुरल चेंज है. देखिए, ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं वो अपने आप नीचे गिरती हैं ना, लीव्स फॉलन डाउन, सो दिस इज आल्सो ए नेचुरल चेंज. डे बिकम नाइट बिकम डे. ओके, सो दिस इज आल्सो ए नेचुरल चेंज. नेक्स्ट इज man-made changes. Man-made changes are brought about by the humans. जिस उन changes में जिसमें humans की involvement होती है, हमारी involvement है, that changes are known as the man-made changes. For example, you want to stitch your cloth. Okay, you want to make your dress, तो आप क्या लाओगे, पहले उसका क्लॉथ लेकर आओगे ना, उस क्लॉथ की कटिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, कुछ शेप चेंज होएगी, फिर आप उसकी अपनी फिटिंग का क्लॉथ बनाओगे, ठीक है, तो आपकी ड्रेस प्रिपेयर होएगी. तो ये चेंज क्या है, आपने उसमें चेंज किया ना. और एंड पेंसिल का एग्जांपल, अगर आप पेंसिल शार्प करोगे, उसकी शेप चेंज होएगी, उसका साइज चेंज होएगा. सो दीज व्हाट आर दीज चेंजेस, दीज आर नोन एज द मैन मेड चेंजेस, the changes in which your involvement is there, that are not natural, these are the man made changes. Okay, next is reversible changes. Reversible changes कौन से होते हैं? Such changes that can be reversed to their original substance. Okay, for example, जो change रिवर्स हो सकते हैं, मतलब जो पहले थे उसी पोजीशन में अगर उन सब्सटेंस को लाया जा सकता है, तो उन सब्सटेंस का जो हमने चेंज किया है वो कौन सा चेंज है, दैट आर नोन एज द रिवर्सिबल चेंजेस. ओके, फॉर एग्जांपल, देखिए, आप डो लेते हैं, आपकी मम्मा जब चपाती प्रिपेयर करते हैं तो डो लेते हैं ना, डो को आप क्या करते हैं, चपाती की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर दैट कैन यू ट्रांसफॉर्म दैट
chapati in the form of the dough again. Is it possible? तो दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंज. उसको वापस उसी पोजीशन में लाया जा सकता है जिस पोजीशन में वो पहले था. सो दीज आर नोन एज द रिवर्सिबल चेंजेस. आइस है, आइस जब मेल्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. अगेन वाटर को जब आप फ्रीज करोगे तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन भी प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्सिबल चेंज. वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर द रिवर्सिबल चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज देयर, तो वाटर को अगर हमने हीट किया तो वो क्या हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब वो स्टीम कुछ टाइम बाद कूल हो जाएगी तो अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना. तो दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज, दीज आर द एग्जांपल. मेल्टिंग, इवेपोरेटिंग, इट मींस हीटिंग. आप आइस को हीट कर रहे हो, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, वाटर में कन्वर्ट होके वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. आफ्टर दैट आप कूलिंग प्रोसेस इज देयर, कंडेंस होके फ्रीज होके वो वापस आइस की फॉर्म में आ जा रहा है. तो ये भी जो साइकिल है दैट इट कैन बी रिपीटेड. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो नाउ नेक्स्ट आर irreversible changes. Such changes that cannot be reversed to their original substance. ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते उसको हम क्या कहते हैं? irreversible changes. फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी एक बार ग्रोथ होगी, ठीक है, तो आप एक बार छोटे थे पहले फिर बड़े हो गए, तो क्या आप वापस से छोटे हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो. सो दिस इज नोन एज द इरिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट इज बैलून का अगर हम एग्जाम्पल है, इफ आई ब्लो द एयर इन द बैलून एंड आफ्टर सो मच एयर इन दैट इट एक्सपेंड एंड आफ्टर लेटर इट बर्स्ट. अगर वो बर्स्ट हो जाता है तो क्या आप वापस से उस बैलून को उसी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था? नो, इट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल. तो जो उनसे सब्सटेंस को आप वापस उस पोजीशन में नहीं ला सकते जिसमें वो ओरिजिनलिटी में थे, तो दैट आर नोन एज द इरिवर्सिबल चेंजेस. So what are the properties of irreversible changes? Now we will discuss the some properties of irreversible changes. So first, may or not be change in the internal structure of substance. अब क्या कहते हैं बेटा, जो irreversible changes होते हैं इनसे जरूर नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट होएगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होएगा. मे बी हो जाए, मे बी नो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग चेंजेस ऑन बॉइलिंग. एग है, ठीक है, एग को आप बॉयल करते हो, क्या आप बॉइल्ड एग को उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में वापस ला सकते हो जैसे वो रात रो एग था? इज इट पॉसिबल? नो. नेक्स्ट इज टीयरिंग ऑफ पेपर. अब टीयरिंग ऑफ पेपर है, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, बट इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने टीयर कर दिया पेज को, तो जितने भी आपने उसके टीयर पेजेस हैं उसके छोटे छोटे, ठीक है, वो क्या है? वो टीयर तो हो गए, वो उसको वापस उसी पोजीशन में लाना तो पॉसिबल नहीं है. इट इज इरिवर्सिबल, बट उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो जो छोटे छोटे पेपर है जिसमें आपने उसको टीयर करा है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है दैट आर सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल पेपर. So if we are taking the example of the rubber, reduction in the size of the rubber, if you are using rubber repeatedly times, तो क्या होएगा उसके बाद? तो उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी ना, तो आप उसको उसी फॉर्म में वापस लेकर आ सकते हो? नो, इट इज इरिवर्सिबल. तो क्या इस इरेजर जो है उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंज हुआ है? नो, इंटरनल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट वाज चेंजिंग इन द केस ऑफ द एग. एग को बॉईल किया था तो उसकी इंटरनल जो प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या हुआ? चेंज हुआ. वाई? उसका टेस्ट चेंज हो गया. ओके, and you cannot brought back into the original position. That's why these all are irreversible changes. But in first case, internal structure of the substance changed, and in second and third case, internal structure of that substance is not changed. Next is, an irreversible change may also result in the formation of a new substance. ये बात आपको याद रखनी है कि जो irreversible change होता है उसमें क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें क्या हो, एक न्यू सब्सटेंस बने. फॉर एग्जाम्पल, एश इज फॉर्म्ड व्हेन वी बर्न अ पेपर. आप एक पेपर को बर्न करते हो, व्हेन यू बर्न द पेपर, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल ऑब्टेन एश. सो दैट एश कैन यू कन्वर्ट बैक इनटू द पेपर? नो. सो इट मींस एश इज अ न्यू सब्सटेंस
which you have now after the irreversible change. And burning of firecrackers, when you burn the firecrackers, what you will get? It will produce smoke, heat as well as ash. So a new substance is formed in the case of the irreversible changes. Next is, now we have read the reversible and irreversible changes. So now you will tell me what are these changes. Now in first case, is it reversible or irreversible? It is reversible change, because यहाँ पर क्या है, कुछ लिक्विड है, लिक्विड को आइसक्रीम में कन्वर्ट हो गया, और अब आप कुछ टाइम के लिए अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो इट विल अगेन कम इन द फॉर्म ऑफ द जूस. ओके, नेक्स्ट इज चॉकलेट, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट. इट इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज. एंड दिस इज एग, इट इज बॉइल्ड एग. So which change is there, reversible or irreversible? It is irreversible change. Next is this, wood है, इसको क्या किया, बर्न किया, तो एश प्रोड्यूस होगी, इसमें भी स्मोक प्रोड्यूस होगी ना. Okay, we will get a new substance, so it is irreversible change. Here some iron nails are there, when they come in contact with the oxygen, so a reddish color, you can see here reddish color is there on the iron nails. Okay, so it is in this case also a new substance is obtained, so it is also an irreversible change. Next is melting of a candle, okay, or burning of a candle. You can say that beta, apart from these some items are there in which two type of changes can be there simultaneously. For example, reversible changes is also there and irreversible change will also be there. तो जब हमने कैंडल को बर्न किया तो जो उसकी मेल्ट वैक्स होएगी, तो आफ्टर दैट कैन यू कन्वर्ट दैट मेल्ट इनटू ओरिजिनल कैंडल? यस. सो दिस इज अ रिवर्सिबल. ओके, बट जहां पर हमने बर्न करी है कैंडल को, क्या आप जो हमारे पास वो कॉटन का थ्रेड होता है दैट यू, उसको तो आप वापस उसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, जो ओरिजिनल में तो जो थ्रेड था. सो यहाँ पर क्या हो रही है, जो यहाँ बर्निंग एरिया, दिस इज द इरिवर्सिबल चेंज एंड दिस इज द रिवर्सिबल चेंज. So this is all about the reversible and irreversible changes. Next is, so again take a brief discussion. Types of changes we have discussed: reversible change and irreversible change. Reversible changes are temporary change, कुछ टाइम तक ही रहते हैं और कुछ टाइम बाद हम उनको ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते हैं. And irreversible changes are permanent changes. We cannot convert them into their original position. Next, in reversible change, original substance can be obtained. Yes, and in irreversible change, original substance cannot be obtained. Okay, are you getting? Next is physical change. Such changes in which only the physical properties of the substance change, but there is no change in its chemical composition. केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होएगा, ओनली फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल उसके साइज में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, सो दीज आर नोन एज द फिजिकल चेंजेस. बट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है केमिकली कुछ भी चेंज नहीं होएगा, दैट आर नोन एज द फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल व्हेन यू टीयर ए पेपर अप, दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, वी हैव डिस्कस दिस थिंग. जब आप एक पेज को टीयर करोगे तो इट इज नॉन एज द फिजिकल चेंज. तो आपके पास एक न्यू सब्सटेंस तो नहीं बन के आया ना. ओके, और केमिकली भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हुई है. ओके, नेक्स्ट इज किकिंग ए फुटबॉल. अगर आप फुटबॉल को किक करते हो, ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद मान लो जो एयर है फुटबॉल में वो क्या होती है, कहीं से बाहर आ जाती है मान लो वो सारी, तो क्या हो गया, फुटबॉल क्या होगी, एकदम स्क्वीज होगी ना. तो आप उसको फिर से फिल करके वापस उसी पोजीशन में लेकर आ सकते हो ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ ना. शेप एंड साइज में चेंज होना, इट मीन्स इट इज फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल चेंज. जब वाटर है, अपने वाटर को बॉयल किया तो वो स्टीम में बदल गया, बट इन स्टीम ऑल्सो देयर आर H2O molecules. In water also there are H2O molecules. In steam also there are H2O molecules now. So is there any change chemically? No. It is changed only in the state of the water. That firstly it was in state of the liquid. Now it is in the state of the vapors. So these are the physical changes. What are the characteristics of physical changes?
इट इन्वॉल्व्स चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस किस में चेंज हो सकता है? कलर में चेंज हो जाए, स्टेट, साइज, कोई पोजीशन, टेम्परेचर, टेक्सचर। सो इनमें जो भी चेंज होगा दैट आर नोन एज द फिजिकल चेंजेस। नो चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर एज वी आर डिस्कस्ड इन रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो, दैट इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं चेंज होएगा। सो सिमिलरली फिजिकल चेंज, नो चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर विल बी देयर, no new substance is formed. Okay, and temporary change, physical changes are temporary change, they are not permanent changes. Now these are also some example of the physical changes. Ice is there, melt करके water बन गया, तो उसकी state में change हुआ, chemically there is no any change, so this is physical change. Water freeze होके ice में convert हो गया, it is also known as physical change. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज, बिकॉज इन एवरी केस व्हाट इज गोइंग ऑन इन कंडेंसेस ऑल्सो, वाटर में कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके वो फिर से क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, स्टीम होएगी जो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. सो दिस ऑल आर द फिजिकल चेंजेस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द केमिकली दे आर नॉट चेंजिंग. सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. नाउ अब कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं बेटा रिवर्सिबल होते हैं, बट सम फिजिकल चेंजेस आर आल्सो इरिवर्सिबल. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस. मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड ग्लोइंग ऑफ बल्ब, दीज ऑल आर द फिजिकल चेंजेस. बल्ब को आप ग्लो करोगे, फिर उसका बटन स्विच ऑफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्लो करना ऑफ कर जाएगा. तो क्या है ये, वापस से आ रहे हैं रिवर्सिबल. दीज आर द रिवर्सिबल एज वेल एज द फिजिकल चेंजेस. नाउ सम, नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. नाउ इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बैलून, तो बैलून को आपने क्या करा, बर्स्ट कर दिया, बर्स्ट हो गया बैलून. आफ्टर दैट तो क्या हो गया, आप उसको वापस उसी पोजीशन में लेकर आ सकते हो? नो. तो अभी इसमें केमिकली चेंज नहीं हुआ, ओनली फिजिकल चेंजेस हुए. ओके, तो फिजिकल चेंजेस भी क्या हो सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकते हैं. सो breaking of glass is also an example of the physical change, but is it reversible or irreversible? It is irreversible. Why? When it will be break, then can it be become in the original position? No. So this is also known as the irreversible change. Next is chemical change, a change in which the chemical properties are changed and new substance is formed, that is known as the chemical changes. A change in which chemical properties are changed and leads to the formation of a new substances, that is known as the chemical change. In physical change हमारे पास कुछ new substance नहीं बन रहा था, but in chemical change we obtain a new substance. What are the characteristics of chemical changes? There are mainly two characteristics of chemical changes, that new substance is formed and the new substance which is formed that have totally different properties than the original substance. Second is they are also irreversible changes. For example, H plus O2, it will form the H2O. Now H2O, it is a water and it is in a liquid form. So can you convert back into the hydrogen and oxygen? No. So this is irreversible change. And now there are two new terms for you, that reactants and product. What are the reactants? The substances that combine together are known as the reactants. So at left hand side you can see that H plus O2. So what these both are the reactants. And what are products? The new substance that is formed, that is known as the product. Okay. Now take some more example of chemical change. First is baking a cake. When you bake a cake, can you get the original ingredients of the cake? No. So what is this? It is a irreversible change and it is a chemical change as well as it is a permanent change. Okay, because chemical reactions होंगी ना इसमें, तो आप वापस इसको नहीं, original substance आपको नहीं मिल सकता. Next is metal rusting. In rusting also new substance is formed. It is an also example of the chemical change. Frying an egg, this also we have discussed, it is also a chemical change. And paper, when you burn a paper,
a new substance, ash and smoke are produced, it also cannot be converted into the original paper. So there are some chemically changes are there in all these examples. So this is all about our chemical change, physical change, reversible and irreversible change, man-made and natural change. Okay, so beta, in next video we will discuss about what are the causes of this change. Read the lesson carefully, and we will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.